Hi friends, continuing our study of chapter number 7, alternating current. We first started with the generation of AC voltage, in which we obtained the formula for AC voltage and saw how AC generator works. AC generator can also be called alternatively as AC dynamo. Then we took the application of this AC voltage, which we obtained it as V equal to Vm sin omega t. We obtained this formula for AC voltage. After we applied this to only a circuit with only resistor, बराबर, उस केस में हमने स्टडी किया. अब चलते हैं आगे, केस ऑफ ओनली इंडक्टर, एसी सर्किट विद ओनली इंडक्टर. तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर टेकिंग एन एसी सोर्स, लेट्स से V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, connecting this AC source to an inductor. Let's say inductor having inductance L, self inductance L. Now in this circuit, using Kirchhoff's loop rule, what we get is एक वोल्टेज ये दूसरा वोल्टेज ये है, तो V plus VL equal to 0. That's what the Kirchhoff rule says. Total potential difference in a closed loop is always 0. Putting up the values, from this we can say V equal to negative VL. अब VL क्या होगा here? Here V is equal to Vm sin omega t, as well as VL is the potential difference generated across L, and that is nothing but induced EMF because of current passing to the circuit. तो वो सर्किट में करंट में चेंज होगा and will get induced EMF, and that is given as minus L di by dt, self induced EMF in the inductor. तो ये दोनों यहाँ रख देते हैं, तो therefore this will become Vm sin omega t is equal to minus L di by dt. Rewriting this equation, see here the variable is time, here the variable is I, तो टाइम को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, L को भी इधर भेज देते हैं, माइनस साइन इस तरफ आ जाएगा. तो what we get is therefore making di the subject of formula will be negative Vm by L sin of omega t into dt. Is this clear? Up we want the formula for current passing to the circuit, तो उसके लिए integrating this equation, what we get is integration di is equal to negative Vm by L is a constant, बाहर आ गया, integration sin omega t. Sorry, ये negative become positive here. This will be positive. So यहाँ पे ये रहेगा. अच्छा, integration sin omega t dt. Okay. Now integrating this side we get I, and this side we get Vm by L sin का integration negative cos omega t into omega. Fair. Sorry, divide by omega. This is integration, so it will be divided by omega, and plus some constant of integration c. C is the constant of integration. Now ये constant of integration की वैल्यू यहाँ पे it is time independent, does not depend on the time. इसका यूनिट same as that of current है, does not depend on time, and therefore इसका value comes out to be 0. Practically we find that this value comes out to be 0, तो इसको हमें consider नहीं करना है. So therefore what we get is I is equal to negative Vm by omega L cos omega t. बराबर है. अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं. Cos omega t is nothing but sin of pi by 2 minus omega t. Cos theta is minus sin pi minus theta, pi by 2 minus theta. बराबर है. Further also we know that एक और चीज हम जानते हैं कि sin of negative theta is negative sin theta. Sin being odd function. साइन ऑड फंक्शन से नेगेटिव साइन बाहर आ जाती है. अगर कॉस की बात करें तो कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा एज इट इज. क्या है, कॉस इज अ इवन फंक्शन, तो नेगेटिव लो है पॉजिटिव इट रिमेंस द सेम. साइन इज ऑड फंक्शन, तो नेगेटिव थीटा है तो माइनस हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो दिस कैन बी रिटन एज, अदला बदली करते हैं, नेगेटिव साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ओके, अब ये कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी को ये रख देते हैं यहाँ पे. तो therefore what we get is current I is equal to negative गया Vm by omega L sin of omega t minus pi by 2. आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? साइन फंक्शन में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि सोर्स हमारा साइन फंक्शन है, तो दोनों सेम फंक्शन हो गए ना, इसके लिए. अच्छा, अब अगर देखें ध्यान से तो कंपेयरिंग द सोर्स का वोल्टेज V इक्वल टू Vm sin omega t, वोल्टेज साइन ओमेगा टी. करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू
ये Vm बाय ओमेगा है ना, इसको हम लोग Im लिख सकते हैं। Im ये कांस्टेंट है पूरा, दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, तो उसका Im लिख देते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, तो यहाँ पे I इक्वल टू Im साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, वेयर Im इज Vm बाय ओमेगा है। चलो, सो फार इज इट क्लियर। अब डिस्कशन देखें तो वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी है, करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो दोनों के बीच में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस हो गया, वोल्टेज एंड करंट के बीच में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस हो गया। सेकेंडली करंट का फेज इज माइनस पाई बाय 2, यानी कि ओमेगा टी से कम हो रहा है, यानी सोर्स से कम फेज है, बराबर है, सोर्स से कम फेज है, फेज अगर कम है तो कड्डी पीछे भी चाहती है, बराबर, फेज अगर कम है कि कंपेयर करते हैं दोनों का, तो एज करंट हैज लेस फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 जितना कम फेज है, इसलिए करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, यानी वोल्टेज आगे आगे चलेगा, करंट पीछे पीछे चलेगा, कितना, पाई बाय 2 जितना। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट दस करंट लैग्स बिहाइंड, क्योंकि उसका फेज कम है इसलिए लैग्स बिहाइंड वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाय 2 रेडियन। हमने रेजिस्टर के केस में देखा था कि V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी था, फर्दर I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी था, दोनों का फेज सेम था, तो दे वर इन फेज। यहाँ पे देखो तो इंडक्टर के केस में माइनस पाई बाय 2 आ रहा है करंट में, तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड, पाई बाय 2 जितना कम फेज है इसलिए इट इज लैगिंग बिहाइंड, तो करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाय 2 रेडियन। ओके, इसको ग्राफिकली बताना तो कैसे बताएंगे, तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। पहले वोल्टेज एंड करंट दोनों का ग्राफ साथ में बनाते हैं। चलो ये जीरो हो गया, पहले वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं। वोल्टेज में साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन इस जीरो से शुरू होगा, जीरो पे जीरो होता है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज। ओके, ये हो गया ग्राफ वोल्टेज का, साइन है इसलिए। अब इसमें साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, मतलब कॉस ओमेगा टी हो गया, बेसिकली तो कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस फंक्शन आएगा। अब कॉस फंक्शन आएगा यानी ग्राफ कैसा होगा, यहाँ से शुरू होगा। अब यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो मतलब पहले पीक करंट का था फिर वोल्टेज का आता है, नहीं, करंट तो लेट चल रहा है, तो करंट का पीक वुड बी लेट एज कंपेयर टू वोल्टेज, तो उसको हम लोग यहां से बताएंगे। ये हो गया, मतलब एक साइन फंक्शन है दूसरा कॉस फंक्शन है, पाई बाय 2 जितना फर्क है ना, पहले एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा जीरो होगा, दूसरा पहला 1 होगा मैक्सिमम होगा तो दूसरा जीरो होगा, पहला जीरो होगा तो दूसरा मैक्सिमम होगा। पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस मतलब साइन एंड कॉस, साइन जीरो होता है तो कॉस मैक्सिमम होता है, साइन मैक्सिमम होता है तो कॉस जीरो होता है। फिगर में ध्यान रखने का, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 इसलिए साइन कॉस का फंक्शन हो गया, ये कॉस वाला ग्राफ हो गया। पर एज करंट इज लैगिंग बिहाइंड, पीक लेट चल रहा है, इसलिए ये बनाने का है। ओके, और इसमें खास ध्यान रखो, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है। ओके, करंट पहले वोल्टेज जीरो बना फिर करंट जीरो बना, वोल्टेज का मैक्सिमम पहले करंट लेट हुआ, जब वोल्टेज मैक्सिमम तब करंट जीरो, करंट मैक्सिमम तब वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम तब वोल्टेज जीरो, फिर वोल्टेज मैक्सिमम तब करंट जीरो। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ करंट। ओके, इतनी बारीकी से ग्राफ बनाना कंपलसरी है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो दिस शोस करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाय 2 रेडियन। ये हो गया, हमने सर्किट की बात की, उसमें से फिर करंट का फॉर्मूला ऑब्टेन किया, करंट का फॉर्मूला ऑब्टेन किया, ये ओनली रजिस्टर के केस में था, रजिस्टर के केस में एंड यहाँ पे देखो तो ये दोनों कंपेयर कर सकते हो कि कितना फर्क हुआ। ओनली रजिस्टर, ये ओनली रजिस्टर वाला ग्राफ वैल्यूज है, एंड ये ओनली इंडक्टर वाली वैल्यूज है। ओके, अब करंट इज वोल्टेज अपॉन समथिंग, करंट इज वोल्टेज अपॉन समथिंग, वो समथिंग क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली, बट इंडक्टर डज नॉट ऑफर रेजिस्टेंस, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। वी डिनोटेड बाय XL is given as Vm upon XL, and XL is inductive reactance. Here XL stands for inductive reactance. It's not resistance but reactance बोलेंगे इसको, inductive reactance, and it is given as omega into L. Omega is 2 pi f, so 2 pi f into L. So this inductive reactance depends on the frequency of the AC source as well as inductance value. दो चीजों पे डिपेंड करता है inductive reactance. इसका यूनिट क्या होगा, obviously it's a resistance. रेजिस्टेंस पर बोल नहीं सकते रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि इट्स नॉट एक्चुअली अ रेजिस्टेंस। इंडक्टर इंड्यूसेस ईएमएफ, इट डज नॉट अपोज, बराबर है। पर यहाँ पे फॉर्मूला में पोजीशन क्या बोलते हैं, रेजिस्टर का है, इसलिए इसका यूनिट रेजिस्टेंस का होगा।
तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एक्सएल का रिएक्टेंस का ओम, रिएक्टेंस का यूनिट विल बी ओम। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग करंट ओनली इंडक्टर के केस में करंट का फॉर्मूला ऑब्टेन किया। 2 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है, उसके बाद डिस्कस करके ग्राफ बना दिया। 3 ग्राफ बनाओगे तो 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। तो अगर ये 3 मार्क में पूछा हो तो ग्राफ बनाने का, 3 मार्क में ना पूछा खाली 2 मार्क में पूछा हो तो यहाँ तक लाके रख देने का। फिर आते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में। यहाँ रिएक्टेंस को इंट्रोड्यूस किया, ये एक्सेल हो गया। यानी कि व्हेन एन इंडक्टर इज प्लेस्ड इन एसी सर्किट इट offers a resistance and that resistance called inductive reactance. Resistance offered by and it is opposing the current, right? It is limiting the current. Clear? अब ये अगर oppose करता है करंट को मतलब ये कुछ पावर डिसिपेशन करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं पावर जनरेटेड इन केस ऑफ ओनली इंडक्टर सर्किट। इसे जरा देख लेंगे उसके अंदर। Let's obtain now the formula for power consumed. Now power consumed in AC circuit with only inductor. Only inductor के केस में पावर कितना कंज्यूम होता है उसको देखते हैं। Now power in electricity we know that it is V into I, बराबर है। इंडक्टर के केस में लेने से इसको PL लिख देते हैं V into I। वोल्टेज कितना है तो अप्लाई किया तो AC वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी। आने करंट कितना है तो करंट भी ऑब्टेन इट एज Im sin ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये ऑब्टेन किया था हमने। This can be written as Vm Im sin of omega t into sin of omega t minus pi by 2. Now this will be Vm Im sin omega t into ये हो जाएगा cos omega t. Obviously with a negative sign यानी ये पावर नेगेटिव बनाएगा, इससे पावर का साइन नेगेटिव है। अभी फिलहाल ये साइड में रखते हैं और इसको cos omega t लिखते हैं। So what we get is Vm Im, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 किया तो ये तो फॉर्मूला याद रखें। बी ग्रुप वालों के लिए खास, ए ग्रुप वाले तो जानते ही हैं साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बी ग्रुप वालों को भी ये मालूम है क्योंकि हमने 11 में इसको लिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला जो लिखवाई थी उसमें ये फॉर्मूला लिखवाया था। फिर भी एक बार रिवाइज कर लिया इसको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा Vm Im by 2 into sin of twice omega t। ये पावर का फॉर्मूला हो गया। पावर वेरीज विद टाइम, तो यहाँ पे पावर कंटिन्यूसली चेंजिंग है, इससे हम लोग क्या करेंगे एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट लेंगे। देयरफॉर एवरेज पावर PL will be equal to Vm Im बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गए, उनका तो एवरेज होता नहीं है, साइन ऑफ ट्वाइस ओमेगा t का एवरेज। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि एवरेज ऑफ साइन थीटा, एवरेज ऑफ साइन थीटा ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। ये साइन थीटा का एवरेज 0 होता है तो दिस कम्स आउट टू बी 0। तो देयरफॉर एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टर इज ऑलवेज 0। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टर इज ऑलवेज 0, यानी कि इंडक्टर में पावर कंजम्पशन 0 है। ओनली इंडक्टर वाला सर्किट है एसी सर्किट, उसमें पावर कंजम्पशन 0 है। नो डाउट इंडक्टर लिमिट्स द करंट, इट रिड्यूसेस, इट कंट्रोल्स द करंट बट विदाउट पावर लॉस। इट कंट्रोल्स द करंट विदाउट पावर लॉस, ये इसका एक फायदा है। हमने देखा था कि एसी डीसी सर्किट में जब हम करंट को कंट्रोल करते हैं, इन्हें रिड्यूस करते हैं या कोई भी चेंजेस करना है उसमें, तो रजिस्टर बीच में आएगा। रजिस्टर का यूज करते हैं करंट को लिमिट करने के लिए। एंड रजिस्टर में व्हेन करंट पासेस पावर इज जनरेटेड एंड दैट पावर इज डिसिपेटेड आउट इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, जूल हीट या ओमिक लॉस बोलेंगे उसको। तो दैट हैपेंस इन डीसी सर्किट। बट एसी सर्किट में ये फायदा है कि अगर ओनली इंडक्टर वाला सर्किट लिया हो एसी सर्किट में तो करंट को आप कंट्रोल कर सकते हो विदाउट पावर लॉस। यू कैन कंट्रोल द करंट विदाउट पावर लॉस, ये एक इसका फायदा है। ओके, तो ओनली इंडक्टर के केस में यू कैन कंट्रोल द पावर विदाउट एनी पावर लॉस, यू कैन कंट्रोल द करंट विदाउट एनी पावर लॉस। तो सर हम इसका यूज नहीं कर सकते? करते ही हैं, हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। यू नो ट्यूबलाइट तो आपने देखा आपके घर पे होगा ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट के अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लगा होता है, क्यूबॉइडल बॉक्स होता है। एक तो सिलिंड्रिकल छोटा सा होता है वो स्टार्टर है, पर क्यूबॉइडल बॉक्स इज अ चोक। क्यूबॉइडल बॉक्स इज चोक, वो छोटा सिलेंडर वो स्टार्टर है। स्टार्टर का काम स्टार्ट करने का ही और कुछ नहीं है, ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए उसका यूज होता है। पर चोक क्या है? चोक इज बेसिकली एन इंडक्टर। चोक में क्या होता है, ऐसे सॉफ्ट आयन की प्लेट्स लेते हैं, उसके ऊपर कॉइल को वाइंड कर दिया जाता है। कभी वक्त निकले मौका मिले तो चोक खोल के देख लेने का, तोड़ अगर मान लो बिगड़ गया और रखा हो साइड में तो उसको खोल के आप देख सकते हैं ऐसी मेटल प्लेट्स के ऊपर कॉइल वाइंड क्या होता है। तो इट्स जस्ट प्योरली एन इंडक्टर, इट्स प्योरली एन इंडक्टर। अब ये चोक का काम क्या है? तो वी नो दैट ट्यूबलाइट वर्क्स ऑन एसी, ट्यूबलाइट में डीसी की जरूरत नहीं है, नहीं तो
उड़ जाएगा। ट्यूबलाइट वर्क्स ऑन एसी, तो एसी पे वर्क करता है, इंडक्टर रखा है। अब जो करंट हमको सप्लाई किया जाता है दैट इज लिटिल बिट लार्ज 1.5 एम्पियर, वो ट्यूब के फिलामेंट को उड़ा सकता है, अंदर के गैस को डिस्टर्ब कर सकता है, डिसोशिएट कर सकता है। इसलिए वो करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। एसी करंट जो हमको मिलता है सर्किट में 1.5 एम्पियर या 6 एम्पियर जैसा भी सेटिंग हो उसके हिसाब से, तो वो करंट को कंट्रोल करने के लिए एक चोक काम करता है। दिस चोक इज एन इंडक्टर विच कंट्रोल्स द करंट बट विदाउट एनी पावर लॉस, कोई पावर लॉस नहीं इसमें, इससे वो यूज होता है चोक। नो डाउट अब जो नए जमाने की ट्यूबलाइट्स है, न्यू जनरेशन ट्यूबलाइट्स आर एलईडी बेस्ड एंड दे डू नॉट रिक्वायर चोक, क्योंकि एलईडी में बहुत हैवी वोल्टेज चाहिए भी नहीं और करंट भी नहीं चाहिए, इसलिए दे डू नॉट रिक्वायर चोक। बट पुराने जो ट्यूबलाइट्स हैं उसमें देखोगे तो ऐसा ट्यूबलाइट बॉक्स आपको मिलेगा, एक्चुअली चोक है, इट्स एन इंडक्टर, इट लिमिट्स द करंट विदाउट एनी पावर लॉस, ये उसका काम है। अब उसको टच करेंगे कभी भी गर्म फील नहीं होगा, बराबर है। वक्त रहते रहते क्या होता है, ये कॉइल थोड़े ढीले हो जाते हैं क्योंकि वाइब्रेशंस अकर इन द प्लेट्स, दे आर मैग्नेटाइज्ड, सो वाइब्रेशन अकर्स, दे रिपेल एंड अट्रैक्ट ईच अदर, तो वाइब्रेशन अकर्स, जूम आवाज आता है, कई बार चोक में से हमिंग साउंड आता है, वो बिकॉज प्लेट्स आर बिकम लूज एंड धीरे धीरे कॉइल कहीं ब्रेक हो जाएगी इस वाइब्रेशन के कारण, तो चोक आउट ऑफ यूज हो जाता है, बिगड़ गया चोक, बोलते हैं। इधर ट्यूबलाइट में तब बोलते हैं कि चोक बदलने की जरूरत पड़ेगी, तो नॉर्मली चोक का प्राइस इतना होता है कि ट्यूबलाइट नवी आ जाए। ओके, सो दैट्स द यूज ऑफ दिस इंडक्टर इन ओनली एसी सर्किट, पावर लॉस इज 0। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं वो दैट इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, वो देखेंगे हम लोग। आई विल सजेस्ट कीप टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने फिगर्स दिए हुए हैं नोट्स में, नो डाउट आप उसमें से पढ़ सकते हैं, तो कोई आना नहीं है, ऊपर थोड़ा कॉम्प्रेस करके छोटा किया क्योंकि नोट की साइज के हिसाब से। अब इफ यू कैन देन पॉज कर दो वीडियो, टेक्स्ट बुक ले आओ, टेक्स्ट बुक में ये फिगर जो दिया है मैं बताता हूँ कौन से पेज नंबर पे है, वो खोलो एंड वहाँ से रिफर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Hi friends, now what the page I was saying was 240, page number 240, जिसमें दिया हुआ है मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ इंडक्टर, फिगर 7.7 है। अगर पेज आगे पीछे हो तो फिगर 7.7 रेफर करें। फिगर में बीच में ग्राफ दिया हुआ है, दिस ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड पावर एंड फ्लक्स, 4 चीजें दी है, तो हम लोग अभी खाली 2 पे फोकस करते हैं, वोल्टेज एंड करंट पे, ये वोल्टेज एंड ये करंट, बराबर है। अब आगे हमने ग्राफ देखा था कुछ ऐसा था, वोल्टेज में बताया था, बराबर है, एंड करंट वाज शोन लाइक दिस। आप बोलोगे यहाँ पे क्या चेंज हो गया, इस केस में वोल्टेज को, ये वोल्टेज था एंड ये करंट था, वोल्टेज क्या था Vm sin ओमेगा टी, ओके, एंड करंट वाज Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, बोले तो cos ओमेगा टी, तो क्रॉस वाला ग्राफ हो गया। ओके, अब क्या किया इन्होंने, बुक ने खाली इतना टेक्निकल एरर चेंज किया है कि वोल्टेज को साइन के बदले cos ओमेगा टी ले लिया, वोल्टेज को cos ओमेगा टी ले लिया, तो ये cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के साइन हो गया। तो वोल्टेज अगर cos है तो मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, करंट साइन है 0 से शुरू हो रहा है, दोनों में डिस्क्रिपेंसी इसलिए दिख रही है। इससे ये ग्राफ को ध्यान में रख के इसे मत देखना, इसमें खाली इतना चेंज लो कि वोल्टेज को Vm cos ओमेगा टी लिया, इससे वोल्टेज यूं बताया हुआ है। ओके, ना वोल्टेज स्टार्टिंग से लेके 1 कंप्लीट साइकिल यहाँ हो गई, 0 से लेके 4 तक 1 कंप्लीट साइकिल हो गई। ओके, नहीं तो करंट में देख लो तो पता लग जाएगा 1 कंप्लीट साइकिल हो गई। तो 0 to 4 इज 1 कंप्लीट साइकिल, इसके 4 पार्ट के 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 1 कंप्लीट सर्कल के 4 पार्ट कर दिए एंड वी आर स्टडिंग दीस 4 पार्ट्स। तो एक साइकिल के दौरान क्या होता है इंडक्टर में वो देखने को मिलेगा। रिफर टू सेंटर में जो दिया ग्राफ दिया हुआ, ये वाला ग्राफ में दूसरी लाइन मत देखे, खाली यही देखें। एंड फिर आता है टॉप कॉर्नर पहला वाला 0 to 1। नाउ 0 to 1 में देखो तो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, 0 to 1 में वोल्टेज पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव। ओके, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट यानी पावर भी पॉजिटिव। यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, देयरफॉर पावर PL विल बी पॉजिटिव, बराबर है। एंड इस दौरान क्या होगा, करंट बढ़ रहा है, इंडक्टर में करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो इंडक्टर इज गेटिंग मैग्नेटाइज्ड। तो 0 to 1 फर्स्ट क्वार्टर में इंडक्टर इज गेटिंग मैग्नेटाइज्ड। ओके, मैग्नेटाइज हो रहा है इंडक्टर, इससे देखोगे तो अंदर फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ा हुआ दिख रहा है, ज्यादा फ्लक्स लाइन बताई हुई है, फिगर पे ध्यान से देखो तो। फिर सेकेंड पार्ट 1 to 2, 1 to 2 में देखो तो करंट डिक्रीजिंग है, भले पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 to 2 में देखो तो वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव,
पर डिक्रीजिंग, पॉजिटिव पर डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग करंट इससे डीमैग्नेटाइज होगा, इन इसलिए पावर को लिखेंगे नेगेटिव, V इंटू आई नेगेटिव आएगा ना, डिक्रीजिंग है। तो आप देखेंगे तो डीमैग्नेटाइज हो रहा है इंडक्टर, आप देखो तो फ्लक्स लाइन उस पर डिक्रीज हो गई है 1 to 2 में, टॉप राइट कॉर्नर, बराबर, टॉप राइट कॉर्नर में जो दूसरा फिगर दिया वो 1 to 2 वाला है, जिसमें करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव है, पावर नेगेटिव आया, करंट डिक्रीजिंग, इससे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो इधर मैग्नेटाइज हो रहा था तब क्या हो रहा था, सोर्स से एनर्जी लेके इंडक्टर एब्जॉर्ब कर रहा था, सोर्स से इंडक्टर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, यहाँ डीमैग्नेटाइज हो रहा है तो वापस सोर्स को दे रहा है अपनी एनर्जी, तो सोर्स से एनर्जी इंडक्टर में, इंडक्टर से वापस सोर्स में जा रही है। ओके, ये दोनों में वो फर्स्ट हाफ साइकिल। फिर चलते हैं 2 to 3 में, 2 to 3 में देखें तो करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव एज वेल एज करंट भी नेगेटिव। फिगर को ध्यान से देखें, दोनों नीचे हाफ में, नीचे हाफ में, नेगेटिव हाफ में, तो वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, तो देखो पावर पीयर इज पॉजिटिव। अब तुम बोलोगे यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव मतलब एनर्जी ले रहा है, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट का नेगेटिव लिया, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ है, पोलैरिटी रिवर्स हुई, डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ, पर करंट का वैल्यू तो बढ़ रहा है, वैल्यू तो बढ़ रहा है ना, करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, इससे मैग्नेटाइजेशन का करेंगे, एंड सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, नो डाउट द पोलैरिटी इज रिवर्स। ध्यान से देखोगे तो नॉर्थ साउथ रिवर्स हो गया, तो इंडक्टर में देखोगे तो नॉर्थ साउथ रिवर्स हो गया, फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई है। ऑब्जर्व द फिगर डाउन, लेफ्ट वन, लेफ्ट फिगर डाउन साइड, एंड फिर चौथा हाफ, इसमें वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, देयरफॉर पावर अगेन नेगेटिव, मतलब सोर्स को वापस एनर्जी दी जा रही है, इंडक्टर गिव्स बैक, मतलब करंट या डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू डीमैग्नेटाइज हो रहा है, करंट एनर्जी वापस दे रहा है, तो सोर्स से एनर्जी लेता है, सोर्स को देता है, सोर्स से लेता है, सोर्स को देता है, एक में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अगर पावर का ग्राफ बनाए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव जो एकदम डार्क बताया वो पावर का ग्राफ है, क्लियर अबाउट दिस, ये पावर का ग्राफ बताया, जिसको शेडिंग करके बताया हुआ है, शेडेड बताया वो पावर का ग्राफ है, हाँ ये जो शेडिंग बताया जो वो पावर का ग्राफ, इसलिए मेहरबानी करके उसको वोल्टेज नहीं गिनना, वोल्टेज ये रहा, करंट ये रहा, ये पावर का ग्राफ, पावर पॉजिटिव, पावर नेगेटिव, पावर पॉजिटिव, पावर नेगेटिव, फ्लक्स हो तो यू कैन जस्ट मैनेज। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द करंट व्हाइल द करंट पासेस थ्रू एन इंडक्टर ड्यूरिंग ईच साइकिल, ड्यूरिंग ईच साइकिल जैसे मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, 0 to 1 मैग्नेटाइजेशन, 1 to 2 डीमैग्नेटाइजेशन, 2 to 3 मैग्नेटाइजेशन, 3 to 4 डीमैग्नेटाइजेशन, 0 to 2 के दौरान एक डायरेक्शन, इसमें पोलैरिटी रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ऑपोजिट, मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन ऑपोजिट, तो दिस व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ एसी सर्किट। ओके, एसी साइकिल, एसी वोल्टेज, तो ये देखने को मिलेगा आपको इंडक्टर के केस में। गो थ्रू द नोट्स, सी थ्रू द टॉपिक, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी जस्ट गिव मी अ कॉल। ओके।